Nehemiah 8:10. नहम्या 1:10 के अनुसार, The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद आपका बल है। The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद ही आपका बल है। In Tamil it says கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருங்கள் என்று. But in English it says the joy of the Lord. கர்த்தருடைய சந்தோஷமே உங்களுக்கு பலன். கர்த்தர் சந்தோஷமா இருக்கிறார். அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்குள் வரும் பொழுது அது உங்களுக்கு பலன். That joy is your strength. वही जो आनंद है वह तुम्हारा बल है। How does this joy of the Lord come? यह जो परमेश्वर का आनंद है कैसे आता है? Zephaniah 3:17. सपनिया 3:17 के अनुसार, The Lord your God is in your midst, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मध्य में है। the mighty one. वह जो सामर्थी है He will save. और वह उद्धार करेगा। He will rejoice over you with gladness. वह आनंद के साथ तुम्हारे लिए गीत गाएगा He will quiet you with his love. और अपने प्रेम के मारे वो चुपका रहेगा He will rejoice over you with singing. और वह गीत गाते हुए तुम पर मगन होगा। When God rejoices over us with singing, जब परमेश्वर गीत गाते हुए हमारे ऊपर आनंदित होता है the joy of the Lord rises up within us. तो हमारे अंदर में परमेश्वर का आनंद जो है वो उमड़ने लगता है, And that is our strength. और वही जो है हमारा बल है, That is our strength. वही हमारी सामर्थ्य है। Not our rejoicing, हमारा आनंद मनाना नहीं, but God rejoicing over us in our heart. लेकिन हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर जो हम में आनंदित होता है। God is living in our hearts. परमेश्वर हमारे हृदयों में जीवता है। You are in my heart. प्रभु आप मेरे हृदय में हैं You must rejoice over me. और आप मेरे ऊपर आनंदित हो। If we do not have joy in our heart, अगर हमारे हृदयों के अंदर में आनंद ना हो, that means God is not rejoicing over us. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे लिए आनंदित नहीं है। If we have anger, अगर हमारे अंदर क्रोध है, if we have guilt, हमारे अंदर अपराध बोध है, if we have pride, अगर हमारे अंदर वह घमंड है, if we have rebellion, अगर हमारे अंदर में विद्रोह है, that means God is not happy over us. तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो हमसे आनंदित नहीं है। If there is joy in our heart, लेकिन अगर हमारे हृदय के अंदर आनंद हो, especially as Habakkuk says, खास करके जैसा हबक्कुक कहता है, even if I do not have anything in this world, चाहे मेरे पास इस संसार में कुछ भी क्यों ना हो, even if I lose everything in this world, चाहे संसार में मैं सारी चीजों को खो क्यों न दूं, yet I will rejoice in the Lord. तो भी मैं प्रभु पर आनंदित होऊंगा। Through that I will get strength, उसके द्वारा मुझे बल मिलेगा and I will rise up to great heights. और मैं महान ऊंचाइयों को प्राप्त करूंगा। Today morning, आज की सुबह remember God is rejoicing over you. याद रखिए परमेश्वर आपके ऊपर आनंदित है। Maybe there is nobody seeing your hard work. हो सकता है कि कोई भी आपके कठोर परिश्रम को नहीं दिखता, God knows. परमेश्वर जानता है। Do you have joy in your heart? क्या आपके हृदय के अंदर आनंद है? That means God is rejoicing over you. उसका मतलब ये है परमेश्वर आपके ऊपर आनंदित है। He will make you speak in new tongues. वो आपको नई भाषाओं में बुलवाएगा Those new tongues will raise you up to do the will of God. और वे नई भाषाएं आपको उन्नत करेंगे कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उठे। And the new tongues will bring new blessings upon you. और वो नई भाषाएं आपके ऊपर नई नई आशीषें लेकर के आएंगी। It's not just the joy of the Lord. ये केवल परमेश्वर के आनंद की बात नहीं। This verse says, यह वचन कहता है God rejoices over you with singing. परमेश्वर गीत गाते हुए आप पर आनंदित होता है। He rejoices over you with singing. वह आपके ऊपर गीत गाते हुए हर्षित होता है। In my father's young days, जब मेरे पिता जवान ही थे उन दिनों में, one day after his hard office work, एक दिन उनके ऑफिस के कठोर परिश्रम के बाद he went to minister. वो सेवकाई करने के लिए गए And when he came home, it was 12 o'clock. और जब वो लौटे तो रात के 12 बज रहे थे। That is how this ministry was built. और ये सेवकाई ऐसे ही बनी थी। Full day office work, पूरे दिन ऑफिस का काम, hard work. कठोर परिश्रम, And then from 6 o'clock to 12 o'clock, he would be ministering to people, praying for them, preaching, and so on. और उसके बाद 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वो लोगों के लिए प्रार्थना करते, प्रचार करते और ऐसे ही सेवा के कार्यों में लगे रहते। My mother will wait till late in the night to feed him. और मेरी माता
देर रात तक उनका इंतजार करती कि उन्हें भोजन कराएं। And one night, एक रात when he went to bed, जब वो सोने के लिए गए, his chest was paining so much. उनका सीना जो था बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था, Terrible pain. भयंकर दर्द था उन्हें। He didn't want to convey it to my mother. और वो मेरी माँ को भी ये सारी बातें बताना नहीं चाहते थे। He thought he will die. उनने सोचा कि वो अब मर जाएंगे। At that moment, और उसी घड़ी an angel appeared. एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ He had something like a ukulele और उसके हाथ में गिटार या यूकेलेले जैसा एक वाद्य यंत्र था and he started playing. और उसने उसे बजाना शुरू किया। Started playing heavenly song. उसने स्वर्गीय संगीत बजाना शुरू किया And the song was about Jesus. और वो गीत जो था यीशु के बारे था। And as he sang and sang and sang, और जैसे वो गाता और गाता चला गया, my father went to sleep. मेरे पिताजी जो थे सो गए, Totally healed. पूरी तरह चंगे हो गए। He got up और वो अगले सुबह उठे with the refreshing joy of the Lord. और प्रभु का एक नया आनंद उनमें था He continued his life. और उन्होंने अपना जीवन जारी रखा। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, God is not going to send an angel to sing to you. He himself will sing to you. परमेश्वर आपके लिए एक दूत नहीं भेजेगा कि वो आपके लिए गाए, लेकिन परमेश्वर स्वयं आपके लिए गीत गाएगा। The song will be rejoicing about you. और वह जो गीत है वो आपके ऊपर आनंद मनाने के बारे में होगा। We are singing songs to praise the Lord. हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गा रहे हैं, But God will sing songs rejoicing over you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए गीत गाएगा और आपके ऊपर वो आनंदित होगा। What song is it going to be? वो क्या गीत होने वाला है? In Matthew 3:17. मत्ती 3:17 में, Matthew 17:5. मत्ती 17:5 में, When Jesus entered into the ministry जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई में प्रवेश किया at the Jordan River, यरदन नदी के तीर पर, a song was heard in heaven. स्वर्ग में एक संगीत सुना गया, God's song परमेश्वर का संगीत, saying, "You are my beloved son. और उसके शब्द थे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, You are my beloved son in whom I am well pleased." तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। That was the song of God over Jesus. वो यीशु के ऊपर में परमेश्वर का गीत था। And before he had to go to the cross, और इससे पहले कि वह जो है क्रूस पर जाए, the Mount of Transfiguration, रूपांतरण की उस पहाड़ी के ऊपर, again the song came. फिर से वही गीत आया। When Jesus was troubled about his mission, जब यीशु अपने उद्देश्य के बारे में परेशान थे, about his future, अपने भविष्य के बारे में परेशान थे, the song said और उस गीत ने कहा from God, परमेश्वर से, "You are my beloved son, तू मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। This is my beloved son, यही मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased." जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Hear him, उसकी सुनो, hear him, उसकी सुनो, hear him. उसकी सुनो। First one, when he entered into the ministry, it was for Jesus. पहली बार वो गीत जब यीशु मसीह ने सेवकाई प्रारंभ की, वो यीशु के लिए था। Yes, it was a song for Jesus from God. हाँ, वो परमेश्वर की ओर से यीशु के लिए एक गीत था You are my beloved son. कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। But when he had to go to the cross, लेकिन जब उन्हें क्रूस के लिए जाना था, the voice came to everybody. वो आवाज हर एक के पास आई, This is my beloved son. यह मेरा प्रिय पुत्र है, I am well pleased. मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। Hear him. उसकी सुनो, Hear him. उसकी सुनो, Hear him. उसकी सुनो। God is singing a song about you, परमेश्वर आपके लिए गीत गा रहा है, telling the whole world पूरे संसार को बताते हुए you are his कि child, आप उसकी संतान हैं, telling your family, आपके परिवार को बताते हुए, telling those who work with जो you, आपके साथ कार्य करते उन्हें बताते हुए, telling those in the place where you live, आप जहाँ रहते हैं उन सब लोगों को बताते हुए this is my beloved daughter. कि ये मेरी प्रिय पुत्री है, Hear her. उसकी सुनो, Hear her. उसकी सुनो, Hear him. उसको सुनो। What a great joy. ये कैसा महान आनंद है। Yes, maybe everybody is cursing us. हाँ, शायद हर एक हमें श्रापित कर रहे हैं, But when our heart is right with the Lord, लेकिन जब हमारे हृदय प्रभु के साथ सही होता है, God will sing about you, परमेश्वर आपके लिए गीत गाएगा, to you आपको and to others. और औरों को भी। And he says, I will glorify you. और वो कहता मैं तुझे महिमा दूंगा। The third song was, I have glorified my name. और तीसरा गीत था, मैंने अपने नाम को महिमा दी I will glorify it still further. और इसे और भी मैं महिमा दूंगा। God's song is coming upon us today. आज परमेश्वर का गीत हमारे लिए आ रहा है। Do not be afraid. न डरे, It will change every circumstance. वो हर एक परिस्थिति को बदल देगा, It will change every situation. वो हर एक स्थितियों को बदल देगा।
This morning is a morning of change. आज की सुबह परिवर्तन की सुबह है। When I was small, जब मैं छोटा ही था, my mother and father brought me up with terrible discipline. मेरे माता पिता ने मेरा लालन पालन बहुत ही कठोर अनुशासन के साथ किया। Taught me the word of God. मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया My mother corrected my handwriting to make it the best. और मेरी माँ ने मेरे हैंड राइटिंग को सुधारा कि वो सबसे अच्छी हैंड राइटिंग हो। Taught me everything. मुझे सब कुछ सिखाया And she brought me up without giving medicines. और उनने मेरा पालन बिना दवाइयों के किया। Praying in faith. बस विश्वास के साथ वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी। But I used to be mischievous. लेकिन मैं बहुत शरारती था, So she will correct me. इसलिए वो हमेशा मुझे सुधारती। நல்ல தலையில கொட்டு விழும். She used to give me knocks on my head वो मेरे सिर में इस तरह से ठोकरें मारती and nice beatings. और अच्छी पिटाई भी करती थी। And then she would say, और उसके बाद वो ये कहती, you must rise up to great heights. देखो तुम्हें महान ऊंचाइयों को छूना है। But now as I look at you, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ, looks like you will fail in everything. நீ உருப்பட மாட்ட. நீ இப்படி படிச்சனா ஃபெயில் ஆயிருவ. உங்க அப்பா இவ்வளவு பரிசுத்தவான், நீ இப்படி இருக்கிற. So I used to hear all that. तो इन सारी बातों को मैं सुना करता था। But then my grandmother came लेकिन उसके बाद मेरी दादी आई and she would call me और वो मुझे बुलाती and put me on her lap और मुझे अपनी गोद में बैठा था and she would sing. और वो गाने लगती। தங்க கண்மணி செல்ல கண்மணி தினகர் பெற்ற செல்ல கண்மணி. இப்பதான் உருப்பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு வந்தேன். இங்க வந்து தங்க கண்மணி, ஏன்னா எங்க பாட்டிமாக்கு என்ன வளர்க்குற பொறுப்பு கிடையாது, அதனால பாட்டு பாடுற பொறுப்பு தான். தங்க கண்மணி கேட்டா ஒரே சந்தோஷமா இருக்கு. I used to be so happy when she would sing the lullaby saying, you are my precious one, you are my wonderful one, you are the honey, you are the this and that, parrot and so on. और इस तरह से जब वो मेरे लिए गाती, तू मेरा प्यारा बच्चा है, सोना बच्चा है, तू मेरे लिए वह चिड़िया है, ये है, वो है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। I'll forget all the advices of my mother. और उसके बाद मैं अपनी माँ की हर एक समझाइश को भूल जाता था And finally I got spoiled. और आखिर में मैं बिगड़ गया। But God also says, लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है, in this world you will have tribulations, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, but be of good cheer. लेकिन तुम मगन हो, I have overcome the world. क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। Through my love for you, तुम्हारे प्रति अपने प्रेम के द्वारा I will sing songs of love. मैं तुम्हारे लिए आनंद के गीत गाऊंगा, प्रेम के गीत। God sang over us. और परमेश्वर हमारे ऊपर गीत गाता है। God sang saying, you are my beloved children. परमेश्वर ने गाया, तुम ही मेरे प्रिय संतान हो। And that was the strength with which we followed him and him alone. और उसी ताकत के साथ हम केवल उसके और उसके ही पीछे चलते रहे। Today as we read in Habakkuk, जैसे कि आज हम हबक्कुक में पढ़ते हैं, God has raised us to high places. परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थानों पर रखा है, Not for our glory, हमारी महिमा के लिए नहीं, but for the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए। God will raise you also. परमेश्वर आपको भी उन्नत करेगा। My precious friends who are watching, मेरे प्रिय मित्रों जो आप देख रहे हैं, God will raise you up also. परमेश्वर आपको भी उन्नत करेंगे। Do not be afraid. न डरे, Just have God sing over you. बस परमेश्वर को मौका दे कि वह आपके ऊपर आनंदित होकर के गाए। You don't cry songs of groaning. आप विलाप के गीत न गाएं, Stop the songs of arrogance. आपके ढिठाई के गीतों को बंद करें, Stop the songs of murmuring. कुड़कुड़ाने के गीतों को बंद करें, Sing songs of deliverance. उद्धार के गीतों को गाएं। Saying, God loves ये me. कहते हुए परमेश्वर मुझसे प्रेम I करता am है, his servant. मैं उसका सेवक हूँ। I'll go to the street and care for everyone in the name of Jesus. मैं सड़क पर जाकर के यीशु के नाम में हर एक की देखभाल और चिंता करूंगा। Nobody need to tell me. किसी ने मुझे नहीं बताना है, I will do what I am told. मैं वही करूंगा जो मुझे कहा गया। I'll be led by the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा Take care of everything for the sake of the people in the ministry. और सेवकाई में हर एक लोगों के लिए जो मुझे करना है करूंगा। And God will sing over me. और परमेश्वर मेरे ऊपर गीत गाएगा, He will raise me to high places. वह मुझे ऊंचे स्थानों पर रखेगा।
This is God's plan for you. आपके लिए यह परमेश्वर की योजना है। Rejoice. आनंदित हो। Rejoice. आनंदित हो। Shall we stand to our feet? आइए हम अपने पांव पर खड़े हो जाएं। Father, पिताजी, I pray for everyone who has a need. हर एक जिसके पास आवश्यकता है, मेरी प्रार्थना है। I pray for everyone who needs healing. हर एक के लिए जिन्हें चंगाई चाहिए, इसमें मैं प्रार्थना करता हूँ। Heal them now. प्रभु जी उन्हें चंगाई दें। Let your healing power flow into their bodies in Jesus' name. उन्हें दे कि आपकी चंगाई की सामर्थ्य यीशु के नाम में उनके शरीर से होकर के बहने लगे। Be healed. चंगे हो जाओ। Be healed. चंगे हो जाओ। Be healed. चंगे हो जाओ। In Jesus' name. यीशु के नाम में Let every sickness and weakness come out. हर एक रोग और कमजोरी बाहर निकल जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Let the blood levels be perfect. रक्त का जो स्तर है वो बिल्कुल सही हो जाए। No deficiency. कोई भी रक्त की कमी ना हो। Every reading be normal in Jesus' name. यीशु के नाम में उनका हर एक माप जो है बिल्कुल सही हो। Let every sin and addiction come out in Jesus' name. हर एक पाप और हर एक व्यसन यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। Let every guilt and weakness come out in Jesus' name. हर एक अपराध और हर एक कमजोरी यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। Take away every family problem, हर Lord. एक पारिवारिक समस्या को दूर करे प्रभु। As you sing songs over every one of us, जब आप हमें से हर एक के ऊपर में गीत गाते हैं, let everyone around us sing songs of joy concerning उन्हें us. दे कि हमारे बारे में हमारे आसपास के सब लोग आनंद के गीत गाएं। Let love surround every one of us, हमें Lord. से हर एक को प्रभु जी आनंद घेरे रहे। Let there be joy in the family, Lord. परिवारों में आनंद हो प्रभु जी। All the financial needs be met by your mighty हर power. एक आर्थिक घटी आपकी महान सामर्थ्य के द्वारा से पूरी की जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Whatever you give them, multiply it, Lord. आप जो भी उन्हें देते हैं प्रभु जी उसे बहुगुणित कर दें। Let that 1 rupee multiply and work as if it's 1,000 rupees, Lord. उनका 1 रुपया प्रभु जी बढ़ करके उनके लिए ऐसे कार्य करे मानो वो 1000 रुपए है। This month, there should be no financial stringency. और इस महीने उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक घटी या मंदी न हो। Father, पिताजी, exceeding abundance of your presence, आपकी उपस्थिति की महान प्रचुरता जो है, miracles, चमत्कार and great authority in our ministry work. और आपका महान अधिकार जो है प्रभु जी हमारी सेवकाई के बीच में कार्य करता रहे। An exceeding abundance of provisions from God. और परमेश्वर से महान रूप से प्रचुरता के साथ हर एक उपलब्धता, Exceeding abundant health and protection. प्रचुरता के साथ अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षा Exceeding abundance of joy. और आनंद की वह जो प्रचुरता है प्रभु जी, God's joy. परमेश्वर के आनंद की, People's joy over us. हमारे ऊपर लोगों का आनंद जो है And our joy with each other. और एक दूसरे के साथ हमारा जो आनंद है, Let there be exceeding abundance. उन्हें दे कि वह बहुतायत के साथ हो। Thank you for doing it. धन्यवाद प्रभु जी ऐसा करने के लिए। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। ושערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד। जहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, जहाँ उनने प्रचार और अनेक अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए, उसी पवित्र भूमि इस्राएल में सपरिवार जाने हेतु आपको सुअवसर है कि आप वहाँ सपरिवार प्रार्थना भी कर सकें और इस तरह आप वहाँ अपने जीवन में भी चमत्कारों का स्वाद चख सकते हैं। पुण्य भूमि इस्राएल की इस यात्रा में डॉक्टर पॉल दिनकरन परिवार के साथ आप जॉर्डन, इस्राएल और मिस्र देशों में आगामी जून 1 से 5 के बीच भारत के प्रमुख शहरों से अलग अलग दलों में हवाई अड्डों से रवाना होंगे। You who fear the Lord, come praise him. You who fear the Lord, come and praise केवल इस्राएल देश हेतु 7 दिन और 6 रातों की एक यात्रा हेतु, जिसमें एयर टिकट, वीसा, 3 सितारा होटलों में रहने की व्यवस्था, 3 बार का बफे का खाना, अलग अलग दर्शनीय स्थलों का एयर कंडीशन बसों में भ्रमण, साथ ही साथ
वाईफाई की सुविधा के साथ कुल कीमत होगी 88,999 रुपए मात्र। जॉर्डन और इजराइल 2 देशों की 9 दिन और 8 रातों की आरामदायक यात्रा और अन्य सारे खर्च मिलाकर के कीमत है 97,999 रुपए मात्र। जबकि जॉर्डन, इजराइल और मिस्र इन तीनों देशों की 12 दिन और 11 रातों के आरामदायक हरेक व्यवस्था के लिए आपको मात्र 1,16,999 रुपए ही देने हैं। इस यात्रा में आप यरूशलेम स्थित यरूशलेम प्रार्थना भवन में डॉक्टर पॉल दिनाकरण के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना के भी अवसर पाएंगे। जॉर्डन, इस्राएल और मिस्र देशों की इस तीर्थ यात्रा में डॉक्टर पॉल दिनाकरण परिवार के साथ मिलकर के जाने हेतु आज ही आप पूरे परिवार का पंजीयन कराएं। पहले पंजीयन कराने वालों के लिए विशेष ऑफर है। अभी संपर्क करें 9500-277-477 अथवा 9994-566-466। O sons of Israel, ईमेल से जानकारी हेतु संपर्क करें support@truefriendtours.com पर। God bless you.